Hello students, myself Ravi Dwivedi. Today I will teach here polynomials, the chapter of polynomials in class ninth. Let's move on the whiteboard and polynomials. I will say in Hindi word बहुपद. I discuss with you about polynomials before I teach you constant and variables. The concept of constant and variables. Without understanding of the constant and variables, you don't understand what is polynomials. See here, constant. Constant means achar. Variable. Variable means char. In word of vary means change. Change means बदलना. Move or movable. Movable. अब हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों से, कांस्टेंट अचर जो स्थिर है, जो नहीं चलता, उसे हम अचर कहते हैं. A situation and time, every things of the world is constant, but is a big definition. You have a junior class, this definition is not apply here. In according to math, I will tell another definition. Yes, date in a month. For example, date in a month. Yes, as well as I will take the month of May. मई. अब मई की 1 ये तारीख है, डेट है 5/8/2020 और 7/5/2020, 19, 19/5/20, 30/5/20. You look here in a special condition of month, vary the date, but don't change the year and month. You can see here
आप देख सकते हैं कि तारीख तो यहाँ बदल रही है, लेकिन यहाँ पर मंथ और ईयर नहीं बदल रहा है। तो अभी हमने आप लोगों को समझाया कि एक विशेष स्थिति में ही कोई चीज़ अस्थाई रहती है, एक विशेष दशा और समय पर एक चीज़ अस्थाई रहती है। ऐसे आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे हम ले लें मंथ ऑफ ईयर, सेकंड एग्जांपल, मंथ ऑफ ईयर। हमने मंथ ऑफ ईयर ले लिया। जैसे हमने लिखा 1 मई 2020, जून 2020, जुलाई 2020। आप you can see here change the month but don't change the year। अब हमने यहाँ I change the problem, so you can see month is changeable but year don't change here, changeable, year जो है नहीं बदल रहा है। तो एक विशेष स्थिति में जो चीज़ें बदलती रहती हैं उसे हम जो है वेरिएबल्स कहते हैं। जो चीज़ नहीं बदलती, स्थिर रहती, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट एंड जैसे इधर हम एग्जांपल लेते हैं, वेरिएबल क्या होता है? जैसे महेश आया, महेश, सुरेश एंड राजेश। इसने कहा मेरे पापा एक्स रुपी कमाते हैं, मेरे वाई और मेरे जेड। कहने का मतलब ये है यहाँ पर ये जो तीनों के पापा जो है अलग अलग पैसा कमाते हैं, बदल रहा है, कोई निश्चित नहीं। वहीं पर कोई एक लड़का और आया, वो कहा कि तुम्हारे पिताजी से मेरे पिताजी दुगना कमाते हैं, तो एक्स रुपये कमाए तो एक्स का स्क्वायर हो गया। नाउ resume the video। We can say a definition: in a problem or situation its value does not change is called constant। लिख सकते हैं in a problem or situation its value does not change is called constant। इधर लिख सकते हैं, इधर दिस साइड, in a problem or situation its value change is called variable। And I will tell you another definition: a symbol having fixed
numerical value numerical value is called constant. And second side variable, a symbol in which may be a sign different numerical value is called variable. तो हम आप लोगों को बताए कि जो जिनका मान फिक्स होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, जिनका मान फिक्स्ड नहीं होता, these quantity are fixed is called constant, and these quantities does not fix are called variable. Yes sir. For example, 1 5 1 2 3 5 etc. इधर राम, रवि, सीता अलग अलग कोई भी है, x y z, this is a variable. Now you will be understand the concept of variable and the concept of variable and constant. Then I discuss the concept of algebraic expression. Write here the definition of algebraic expression. An algebraic expression have the combination of constant and variable is called this is a stop here. An algebraic expression have the combination of constant and variable. This is a complete definition. We can write here I will denote algebraic expression AE. AE is equal to constant into variable to power rational number. For example, 5x to power 1/2. रेशनल नंबर क्या होता है? A number we can write p by q
q डज नॉट इक्वल 0। कोई भी नेचुरल नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिखें बट q डज नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। I will discuss some property of algebraic expression. Addition of algebraic expression AE plus AE। AE मतलब algebraic expression plus algebraic expression। तो मैं एक algebraic expression ले लेता हूँ। हो जाएगा 5x के पावर 1/2 प्लस 6x के पावर 3/2। अब देखिए हमने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ा तो हमें क्या मिला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिला। ऐसे ही यू कैन सेपरेट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए ई माइनस ए ई। तो यहाँ पे हम अगर इनको घटा देते हैं 5x टू पावर 1/2 माइनस 6x टू पावर 3/2, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या मैंने बताया, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, अब पावर हमारा रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर, दोनों चीजें क्या है, रेशनल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए 5x टू पावर 1/2 इंटू 6x टू पावर 3/2। अब क्या करेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 30 और पावर का ऐड हो जाता है तो क्या हो जाएगा 3 1 4/2 4/2 इक्वल टू 30x टू पावर 2। लेकिन ये क्या है, नेचुरल नंबर है, हम मान सकते हैं ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम डिवाइड में देख लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, अब 5x टू पावर 1/2 बाई 6x टू पावर 3/2। अब डिवाइड में इन द डिवाइड सेपरेट द पावर, तो 5/6x टू पावर 1/2 माइनस 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5/6x टू पावर -1। दिस इज द अलजेब्रिक आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम आप लोगों को ये सिखाना चाह रहे हैं, यदि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, घटाते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, डिवाइड भी करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। अगर इन सभी में अगर हम कोई कांस्टेंट भी जोड़ दें तो भी हमें क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को बता दिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। एंड नाउ आई विल डिस्कस पॉलिनोमियल्स। Polynomial, this is a combination of two words. In polynomials having two words, first Greek word is poly. Poly means होता है many, and
नोमियल, नोमियल मीन्स नेम होता है, बट यहाँ हम नेम नहीं लेंगे। यहाँ हम नाम अनेक प्रकार होते हैं, तो नेम को हम यहाँ नहीं मानेंगे, हम यहाँ क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे, टर्म। तो देखो, मेनी मीन्स बहु, टर्म मीन्स पद। आई विल राइट हियर बहुपद। तो बहु और पद को हम जोड़ दें तो क्या हो गया, बहुपद। हिंदी में हम बहुपद ही कहते हैं। मेनी टर्म्स इन इंग्लिश वर्ड आई विल टेल इट, आई कैन से मेनी पद, मेनी टर्म्स बहुपद। वी कैन राइट definition. An algebraic expression, an algebraic expression in which power of in which power of variable, power of variable is power of variable is whole number, power of variable is whole number called polynomial। इसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कह रहा है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था, जिसमें जो है लिख देते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होता था कांस्टेंट वेरिएबल, पावर होता था रेशनल नंबर, है ना। लेकिन पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, इन पॉलिनोमियल कांस्टेंट वेरिएबल पावर होल नंबर, पावर इज whole number. The basic difference of the an algebraic expression and in polynomial are: the power of algebraic expression is rational number and power of polynomials is whole number. whole number, rational number। whole number किसे कहते हैं, 0 1 2 3 add the 0 a counting number, 0 add the counting number is called whole number। यदि हम 0 से संख्या को गिने पूरा कहीं तक भी वो whole number कहलाती है। ये हुआ। अब इस पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। I will tell you all rational number, all rational number is not a whole number।
but every whole number is a rational number. It means 5x to power 5 ये पॉलिनोमियल्स है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। कहने को लोग अगर यहाँ पर 5/1 कर दे तो अलजेब्रिक हो जाएगा, बट 5x टू पावर 1/5 अभी क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन डज नॉट पॉलिनोमियल। कहने का तात्पर्य मैं ये कह रहा हूँ कहने का तात्पर्य यह है कि पॉलिनोमियल इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, मतलब पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डज नॉट पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। Now we can say here the property of polynomials: addition, subtraction, multiplication and divide। एक पॉलिनोमियल को जोड़ते हैं अनदर पॉलिनोमियल तो हमें क्या मिलता है। जैसे हमने जोड़ा 3x² प्लस 6x² इक्वल टू 9x², we can find a polynomial. If you add two polynomials comes the result a polynomial, and polynomials minus polynomials, 3x² minus 6x² इक्वल टू दिस इज a polynomial। देखिए पॉलिनोमियल डिफिनेशन क्या है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स पावर होल नंबर। ये कांस्टेंट वेरिएबल है और पावर होल नंबर, ये पूरा क्या है पॉलिनोमियल्स। एंड मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल्स इनटू पॉलिनोमियल्स, तो 3x² इंटू 6x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 with 18x to power 4, this is a polynomial। and dividation to p by p, but in this property you have very careful। Now we can say here the degree of the polynomial of numerator, and this numerator is greater than denominator। कहने का तात्पर्य ये है, ये उसी कंडीशन में प्रॉपर्टी लागू होगी जैसे हमने ये लिखा 6x²
6x क्यूब और 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6 और x 3/1, x⁻³ - 1 = 2x²²। बट इसको यदि हम उल्टा कर दें, 3x² / 6x³, तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा 1/3, 2 - 3 = 1/3x−1। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं दिस इज अ कांस्टेंट, 1/3 इज अ कांस्टेंट, बट -1 इज नॉट अ होल नंबर, दिस इज इंटीजर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तभी लागू होगा इसमें जब हमारा न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होगी, नहीं तो इस पे हम लागू नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम यहाँ लिखा 3x² + 6x³ - 7x5, अगर इसको हम टर्म गिनेंगे तो 3x² और 6x³ - 7x⁵। माइनस को भी हम टर्म मानेंगे, यदि हम माइनस को छोड़ देंगे तो ये 3 टर्म का पॉलिनोमियल नहीं होगा, 2 टर्म का हो जाएगा। कहने का मतलब द एडिशन ऑफ टर्म इज एक्चुअल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। यदि हम टर्म को जोड़े तो पॉलिनोमियल्स ही आना चाहिए। नाउ आई विल डिस्कस now we discuss the classification of polynomials, but I think video is too long. You can watch, think, write and understand, and I will meet you next video.